Question number 13 of this exercise. A simple question. My dear students, on 30th of September I am attaining my retirement on attaining superannuation. In order to complete my documents, I could not upload the video on 2 days, for which inconvenience is highly regretted. Now we come to question number 13 of the exercise. Question number 13 is a simple question. Find the equation of the right bisector of the line segment joining the pointers 13, 3, 4, minus 1 and 2. It is a simple question. I put this question as a homework to you. However, question number 14 is somewhat different. I would solve question number 14. First, you see the question number 14 of your exercise 10.3. Find the coordinates of the foot of the perpendicular from the point -1, 3 to the line. So if we consider a line here, let us consider this line. This line with equation as, say, L1 has the equation as 3x minus 4y minus 16 equal to 0. And we have another line here upon it. It is perpendicular to this line. It is simply a perpendicular upon this line. So let us suppose that it be perpendicular to this line at point x1 and y1. The point P is here, say minus, it is 1, 3 given. So let us suppose that PQ has the equation, and this is line L2, and this given line L1 is this as shown in the figure. Now we come to the question. Figure is before us so that we can well understand this. Find the coordinates of the foot of the perpendicular from -1 and 3. We have a perpendicular, say PQ. We have to find the coordinates, say x1, y1. Simple way is here. We have, in this case, we write it as L1. Let नहीं बल्कि दिया हुआ है. Suppose L1 line हमारी है. It is represented by 3x minus 4y minus 16 equal to 0. This is the line. So we can also have here, you know that if a line ax plus by plus c equal to 0, any line perpendicular to it can be is bx minus ay plus mu equal to 0. ये उसूल हम यहाँ पर लगाएंगे. सो देयरफॉर हम इस तरह से कहेंगे पहले, देयरफॉर L2 is perpendicular to L1. Therefore equation of L2 is equal to, it can be as 4x plus 3y plus mu equal to 0, because it's perpendicular to the above line. This will be called as equation number 1, suppose. So it also passes through P minus 1, 3. Therefore हमारी L2 जो इक्वेशन बन गई दूसरी, सो 4 times -1 plus 3 times 3 plus mu equal to 0. ये सॉल्व करने से हमें निकलेगा यहाँ पर that mu is equal to, this implies that mu is equal to, mu जो है वो निकलेगा सॉल्व के बाद -5 के बराबर. Hence L2 जो है it is identical to the equation 4x plus 3y minus 5 equal to 0. तो इक्वेशन सेकंड इसका नाम रखेंगे. अगर इन दो को हम सॉल्व करेंगे हमें निकलेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ x1 y1. तो सॉल्विंग 1 and 2, तो सॉल्व ऑफ 1 और 2 कर सकते हैं आराम से. यहाँ पर मैं अगर बताऊँ वर्किंग प्रिंसिपल तो इसका वीडियो लंबा होता है, वो अपना काम बाकी रहता है. ये 10th क्लास का पार्ट है ये. अब सॉल्विंग ऑफ द 2 इक्वेशंस यू कैन डू योरसेल्फ. सॉल्विंग 1 and 2, सो px1 y1 आपको निकलेगा इज इक्वल टू, हम लिखेंगे p इंटू, यहाँ पर आपको निकलेगा ये 86/25 एंड -49/25
एलिमेंट्री पार्ट है, आसान पार्ट है, इसलिए ये आप खुद कर सकते हैं। सॉल्विंग ऑफ द टू इक्वेशन दैट कंप्लीट्स क्वेश्चन नंबर 13। ज़रा हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 जो है, ये था क्वेश्चन नंबर 14, इट वाज क्वेश्चन नंबर 14, यस क्वेश्चन नंबर 14। तो देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 सेज दैट द परपेंडिकुलर, बेहतर ये होता है कि मैं आपको शक्ल पहले बनाऊँ फिर सवाल की तरफ जाएंगे। पहले शक्ल मैं बनाऊँ अपने तौर पर, यहाँ पर O00, यहाँ पर एक लाइन है इस तरह से, सपोज इट इज़ आवर y, OY। सो एक लाइन है, फॉर एग्जांपल दिस लाइन, सो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ दिस लिखेंगे हम इक्वेशन की। तो यहाँ पर एक पॉइंट भी दिया हुआ है, ये देखिए आप, ये एक पॉइंट है यहाँ से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस सपोज इट इज़ G। तो इसका ये पॉइंट जो है यहाँ पर P-1 and 2 है। सो ये हमारी लाइन सपोज L1 रिप्रेजेंट करती है, L1 एज y इक्वल टू mx प्लस c। ये हमारी इक्वेशन है इसकी। सपोज इसकी लाइन जो है इसको हम लिखेंगे रिप्रेजेंट बाय L2। तो आराम से हम कह सकते हैं इस तरह से। अब सवाल की तरफ आएंगे। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, ये ओरिजिन हमारा है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द लाइन y इक्वल टू mx प्लस c। ये लाइन है y इक्वल टू mx प्लस c, मीट्स इट एट पॉइंट -1 and 2। यहाँ से परपेंडिकुलर मीट करता है इसको एट -1 and 2, से दिस पॉइंट इज P। फाइंड द वैल्यूज ऑफ m and c आपने निकालना है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन इज हियर, डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स OP इज इक्वल टू D is equal to square root of difference of abscissa whole square 0 plus 1 whole square plus 0 minus 2 whole square। तो ये बराबर आएगा सिंपली अंडर रूट ऑफ 5 विदाउट वेस्टिंग टाइम। ऑल्सो एंड D अगर हम देंगे इट इज परपेंडिकुलर अपॉन दिस लाइन, तो हम कह सकते हैं इट इज मॉडुलस ऑफ m इंटू 0 माइनस 0 प्लस c डिवाइडेड बाई square root of the coefficient of x square plus coefficient of y square, that is m square plus 1 square। this will imply that our, देखिए ये अंडर रूट 5 के बराबर है ना, निकाला है हमने। this implies that अंडर रूट ऑफ 5 is equal to मॉडुलस ऑफ c बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर सकते हैं तो हमें निकलेगा this implies that c square is equal to 5 times 1 प्लस m स्क्वायर। हाँ चलो इसका नाम यहाँ रखेंगे 1 इस इक्वेशन का। नाउ अगर हम देखेंगे ऑल्सो, अब हमें m चाहिए ना, यहाँ पर m स्लोप हम कह सकते हैं स्लोप ऑफ OP, स्लोप ऑफ OP इज डिफरेंस ऑफ एब्सिसा, सॉरी ऑर्डिनेटर्स बाय एब्सिसा। सो 0 minus 2 डिवाइडेड बाय 0 plus 1 दैट इज इक्वल टू -2। अगर परपेंडिकुलर जो है ये परपेंडिकुलर है इस पर D, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन L2 इज m इक्वल टू, यहाँ पर बनेगा ये सिंपली 1/2। तो हम कह सकते हैं हेंस फ्रॉम 1 c स्क्वायर इज इक्वल टू 5 times 1 plus 1 by m square, this 1 plus m square, that is 1/4 आएगा ये, that is equal to 25/4। that gives us c square is equal to plus minus 5/2 whole square। तो that gives us c equal to 5/2। हम पॉजिटिव साइन ले रहे हैं, इंटरसेप्ट पॉजिटिव होता है, सो इट इज पॉजिटिव। तो ये हो गया इसका आंसर। that was question number 15। now we come to question number 16। these are very important questions। P, here he says that P and Q are the lengths of the perpendicular। बेटर ये है, मेरा ये कायदा ये है कि मैं शक्ल बनाता हूँ, उस तरह से आपको समझने में आसानी होती है। ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम, वो है OX and this is a line, suppose OY। The questioner says that you have a line, for example this line is say L1, रफ लाइन शक्ल बना रहा हूँ मैं L1। तो यहाँ पर आपने इसका एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर है ओरिजिन से, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय दिस इज से P, दिस डिस्टेंस। और एक लाइन है यहाँ पर, मैंने रफ शक्ल ये मैं बना रहा हूँ दिस लाइन। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे इस पर भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक है, से दैट इज Q, दिस इज L2। तो हम इस तरह से कहेंगे
Let us suppose that L1 is identical to the equation x cos theta minus y sin theta minus k cos 2 theta equal to 0. So अगर हम देखेंगे perpendicular distance, so P will be equal to 0 times cos theta minus 0 times sin theta minus k cos 2 theta modulus of this whole divided by under root of cos square theta plus sin square theta. सॉल्व करेंगे. सो p square is equal to, देखेंगे हम, k square cos square 2 theta आएगा. we will name it as equation number 1. इस तरह से also L2 is equal to, second line is also represented as x sec theta plus y cosec theta minus k equal to 0. अब देखिए इस पर भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस q इज इक्वल टू इसी तरह से 0 टाइम्स सेक थीटा प्लस 0 टाइम्स कोसेक थीटा माइनस k होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा. दिस विल गिव अस दैट q स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वायरिंग कर रहे हैं हम, दिस विल गिव अस इट इक्वल टू k स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा. सेक को कॉस करेंगे, किसमें कॉस को साइन में यहाँ चेंज करते हैं डिनोमिनेटर को, तो ये इसी के बराबर आएगा. इज इक्वल टू, अब परफेक्ट स्क्वायर है यहाँ पर, हम कहेंगे 4 टाइम्स साइन स्क्वायर 2 थीटा. दैट विल गिव अस 4q स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर 2 थीटा. वी विल कॉल इज दैट इक्वेशन सेकंड. एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग 1 and 2, तो हमें क्या देगा, p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इज इक्वल टू, आप देखिए k स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज 1 इंटरनली, सो k स्क्वायर. तो हमारा रिजल्ट जो आ गया p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर, ये हो गया हमारा आंसर. इसके यही प्रूव करना था इस सवाल में, शो दैट यही कहता है ये. नाउ वी कम टू वन मोर क्वेश्चन mostly asked in the examination, and it's a simple question. For example, intercept form of a line is given to us. Here, this is the intercept form of the line. Say A, B. It is equation is let question पहले बताऊं. If P is the length of perpendicular from the origin to this line, P is the length of perpendicular. Say it is P. यहाँ से यहाँ तक. तो आपने प्रूव करना है that 1 by P square is equal to 1 by A square plus B square. Let equation of ABB x by A plus y by B minus 1 equal to 0. So इस तरह से हम कहेंगे P is equal to length of perpendicular from 0 upon it is equal to modulus of 0 by A plus 0 by B minus 1 whole divided by coefficient of x square is 1 by A square plus 1 by B square. That will give us फॉलो करते हैं, दैट विल गिव अस, अगर हम देखेंगे ये बराबर बनेगा इस तरह से, मॉडुलस ऑफ दिस विल बी इक्वल टू p स्क्वायर इक्वल टू, सॉल्व करते हैं हम, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर ऊपर आएगा a स्क्वायर b स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. इन्वर्ट करेंगे इसको 1 by p स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल डिवाइड बाय a स्क्वायर b स्क्वायर. अगर हम देखेंगे a स्क्वायर बाई a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर b स्क्वायर, कैंसिलेशन ऑफ द टर्म्स, a स्क्वायर कैंसिल, यहाँ b स्क्वायर कैंसिल, सो 1 by p स्क्वायर इज इक्वल टू 1 by a स्क्वायर प्लस 1 by b स्क्वायर. दो के क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन अक्सर इम्तिहानों में ये पूछा जाता है. आई थिंक दिस मच इज सफिशिएंट फॉर टुडे.